डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Good evening, myself Dr. Naishal Rawal would like to welcome you all at Chaitanya Studio, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad. In the last sessions, we had talked about the consumer rights and the consumerism, and the current sessions will be done with the industrial sickness and the trade union. Let us talk about the industrial sickness. Before going to some particular topic or before going to the content of the current presentations, let me give some brief idea about the industrial sickness. It is a very much dangerous for any country because it has a capability to affect other industry in the country as well. So there are many reasons or causes for a particular industry to get sick. There are reasons which man-made or as managerial decision flow, labor issues, high input price, this all causing losses for the several years and become the sick industry. Followed by trade unions, which are representative of laborers, which tries to solve problem of the laborers. Main aim of trade union is to make sure that laborers are getting what they must get for their hard work. They must get proper wages, salary, proper working place, and at least some social benefit from the employer side. So in this unit, we will be covering about the industrial sickness and the trade union. Now, if we talk about market-oriented economy, so industrial sickness is very much a common problem. Say for example, China is a market-oriented, but political system is not a democratic over there. So in the first case, industrial sickness is very much visible, while in the second case, it may or may not be that much visible because of its later situations. Government support the industry at the higher extent. Market economy है, सरकार का support मिलता है, but government वहाँ पर और political atmosphere democratic नहीं है. So industrial sickness usually refers to the situations where industrial firm performs poorly and face losses for several years, often default in its debt repayment and obligations. Indian examples भी आने वाले sessions में हम देखेंगे. So before going into the detail, let us talk what Reserve Bank of India is saying about the sick unit. They said that which has suffered a cash loss for 1 year and is tend to making loss for current year as well as in the following year, and the unit has imbalance in its financial structure, like current ratio is less than 1:1 and there is a worsening trend in the debt equity ratio. स्टेट बैंक ने उसको डिफाइन किया कि बेसिक यूनिट किसको कहते हैं. It fails to generate an internal surplus on a continuous basis and depend for its survival upon the frequent infusion of the fund. इसका बेस्ट एग्जांपल दूँ तो जब हमारे कंट्री में मोबाइल फ़ोन नए नए स्टार्ट हुए थे तो उतने में ही एक कंपनी लॉन्च हुई थी मार्केट में एंड दे वेर गिविंग द CDMA टेक्नोलॉजी. नॉर्मली मोबाइल फ़ोन में GSM टेक्नोलॉजी आता है, फ़ोन चोरी हो जाता है तो सिम कार्ड बदल दो तो फ़ोन गया. तो उस ज़माने में CDMA टेक्नोलॉजी आता था. बात कर रहा हूँ आज से तकरीबन 20 साल पहले की, 2002-3 के आसपास ये फ़ोन आया था. अब CDMA फ़ोन में ऐसा था कि जब चोरी होता है तो चोर के काम में भी वो फ़ोन नहीं आएगा. यू जस्ट नीड टू कॉल एट द कस्टमर केयर एंड बोल देने का कि अपना नंबर ये है, इतना चोरी हो गया है फ़ोन, तो कार्ड अपना ब्लॉक हो जाएगा. बट उसी टाइम के बाद 4-5 साल में हमारी कंट्री में 4G इंटरनेट सर्विस, 3G इंटरनेट सर्विसेज आने लग गई. और जैसे जैसे इंटरनेट सर्विसेज चेंज होती गई, दैट कंपनी डिडंट चेंज दोज टेक्नोलॉजी. और उसमें जो उसने डेब्ट लिया हुआ था, पैसे लिए हुए थे उधर बैंक से, तो उसको चुकाने के लिए उसने दूसरी बैंक से लोन लिया और दूसरा धंधा शुरू किया. तो एक धंधे को बचाने के लिए दूसरा धंधा भी स्टार्ट किया, बैंक से लोन लिया, तीसरा भी स्टार्ट किया, लोन लिया. ऐसे करते करते उसने अपना कारोबार तो फैला दिया, बट समय के साथ साथ दे वर नॉट एबल टू चेंज दोज टेक्नोलॉजी और फिर वो कंपनी हो गई पूरी की पूरी आउटडेटेड.
आउटडेटेड होने के बाद उसके जो कॉम्पिटिटर्स थे वो थोड़े बहुत मार्केट में टिके, लेकिन अभी वो कॉम्पिटिटर्स भी, उनका भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो जैसे जैसे तुम कंटिन्यू लॉस करते जाते हो एंड कैश स्कैरसिटी रहता है, एंड इफ योर कैश लिक्विडिटी रेशियोज डेब्ट इक्विटी रेशियो गिनते हैं तो 1:1 के पार्ट में होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो इंडस्ट्रियल सिकनेस के तौर पर कहा जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज कॉल्ड सिक और वीक इन दिस कंडीशंस बिकॉज उसके पास ऑलरेडी कैश आर इक्वल टू 50% और लेस or more of its peak net worth during the last 5 years, meeting 4 consecutive installment of the interest। आया नहीं है। अब क्लासिफिकेशन ऑन इंडस्ट्रियल सिकनेस किस हिसाब से रहेगा, which is triggered because of external factors which are not in control, the initial mistake of establishing business which are not viable through it was established, so obviously prone to fail or become the sick, and the industry become victim of the wrong sessions taken by the top managements। There are 3 levels of management: top, middle and bottom। अगर कभी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ गलत डिसीजंस लिया है और उसका परिणाम गलत आया है तो उसको भी हम इंडस्ट्रियल सिकनेस कहते हैं। कंपनी फेल्स टू और या तो बिकम सिक यूनिट। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। ठीक है, कोडेक नाम का एक कंपनी था जो फोटोग्राफी का एक फ़िल्म बनाता था, नेगेटिव आती थी पहले के ज़माने में, रोल आता था पूरा। ठीक है, तो उसने टेक्नोलॉजी डोमिनेटिंग था, फोटोग्राफिक फ़िल्म बनाया था, मोनोपोली था। दो जो उनके इंजीनियर थे स्टीव साहब, उन्होंने इन्वेंट किया था पहला डिजिटल कैमरा इन 1975। राइट, उसके बाद इंडिया में बहुत लेट आया डिजिटल कैमरा, but it was filmless photography, so management's reaction that's cute but not tell anyone about it। किसी को बताया ही नहीं उसके बारे में। and the leaders of Kodak being failed to see the digital photography as a disruptive technology। और 2012 में कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल किया, खर्चा बढ़ता गया, लॉस होता गया, 2012 से कंपनी बंद होती गई। सो ऐसी तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो धंधा बहुत अच्छे तरीके से शुरू करती है, लेकिन कुछ कारण की वजह से उसमें लॉसेस कवर नहीं हो पाते, लॉसेस पे लॉसेस होते जा रहे, बढ़ते जा रहे लॉसेस, और अंत में बैंकरप्ट हो गए और कंपनी बंद। मैंने अभी जो टेलीफोन कंपनी का एग्जांपल दिया था उसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस, right, 2008-9 में the price per share was somewhere around 700 to 900 and right now it is around 2 to 3 rupees। तो वो जिस ग्रुप से बिलोंग करते थे, रिलायंस ग्रुप से, उस ग्रुप की सारी जो कंपनीज है वो सब की यही हालत है फ़िलहाल। सुप्रीम और हाई कोर्ट में केसेस चलते हैं और धीरे धीरे समय के साथ उसको केसेस से बाहर निकलने का मौका भी मिलेगा, बट वो समय की बात है। So Kodak fail हुआ, that is also industrial sickness। If I talk about Nokia, one of the very much successful company in the mobile phone। जब भारत में मोबाइल फ़ोन नया नया आ रहा था, टेक्नोलॉजी नया नया था, तब नोकिया, जिस किसी को भी पूछो कौन सा फ़ोन तो बोले कि नोकिया का फ़ोन है। कब? खास तौर से 90s में और अर्ली 20s में ग्लोबल लीडर था। इंटरनेट और अदर मोबाइल कंपनीज started understanding that how data not voice was the future of communications। So Nokia ने मार्केट में रूल तो किया 90s में और अर्ली 20s में, but they didn't grasp to the concept of software and kept focusing on the hardware because the management feared to eliminate the current users if they changed too much। तो पहले वो ऐसे बटन वाला फ़ोन आता था, कीपैड आती थी पहले, राइट। नंबर 1 के ऊपर सारे सिंबल्स रहते थे, 2 के ऊपर ABC, 3 के ऊपर DEF, ऐसे पूरा कीपैड रहता था। सो हमें अगर मैसेज टाइप करना हो ना, C लिखना हो सबसे पहले, तो 2 नंबर के बटन को 3 बार प्रेस करना पड़ता था। COM लिखना पड़ता था तो 6 नंबर का बटन 3 बार प्रेस करना पड़ता था। फिर M लिखना है तो 6 नंबर का बटन 1 बार प्रेस करना है।
तो इट वॉज अ कीबोर्ड, राइट. फिर एक रिवॉल्यूशन ऐसा आया मोबाइल फ़ोन की दुनिया में कि कीपैड की ज़रूरत ही नहीं है, टच स्क्रीन फ़ोन. यू जस्ट नीड टू टच दैट पर्टिकुलर लेटर और अ नंबर, सीधा टाइप हो जाएगा. फ़ोन विदाउट कीबोर्ड, राइट. जब कंपनी ने ये किया, ये डिसीजंस, तब उसकी कंपटीशन में जितना भी कंपनी था वो उससे ऑलरेडी आगे निकल चुका था. सो नोकिया के साथ साथ मार्केट में सैमसंग था, नोकिया के साथ साथ मार्केट में वीवो आया था, बीच में लावा मोबाइल फ़ोन आए थे, टाटा वालों ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला था, रिलायंस वालों ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला था. सो कॉम्पिटिशन्स बढ़ती गई. उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी को इतना चेंज नहीं किया. क्यों चेंज नहीं किया? कि भाई अगर बार बार हम अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब यूज़ करेंगे, चेंज करते रहेंगे या फोकस करते रहेंगे उसके ऊपर, तो यूज़र इफ़ दे चेंज टू मच, राइट, तो हम यूज़र्स जो अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर यूज टू हो गए, हमें अभी वही चाहिए. लेकिन समय के साथ अगर चेंज नहीं किया तो फिर वो आउटडेटेड हो जाएगा. इन द ईयर 2008, ये अब तक की बात थी 2003-2002 की, अभी 2008 में नोकिया के फ़ोन के अंदर भी एंड्रॉयड वर्जन्स अवेलेबल आने थे, मौजूद थे. बट जब तक उसने सब सॉफ्टवेयर वगैरह में चेंज किया या रिवॉल्यूशन लाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कंपटीशन में 4 कंपनी और थी और वो एंड्रॉयड के एडवांस वर्जन्स पे काम करते थे. एंड कंज्यूमर्स को प्रेफरेंस मिलता ही है. If one company is selling a mobile phone of rupees 15,000 and other is selling mobile phone of rupees 12 or 14,000, definitely वो जहाँ पर प्राइस कम होगी उस तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे. फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उसको टेक ओवर भी किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा. दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सिकनेस. दिस आर दी एग्जाम्पल्स, फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस. ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. अब कौन सी कंपनी सिक होती है और वाई कंपनीज आर गेटिंग सिक, रीजंस ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस. तो सबसे पहला है इंसेप्शंस. रॉन्ग सिलेक्शन रहता है प्रोडक्ट का, लैक ऑफ प्लानिंग. कभी भी कुछ भी जो मन में आए, डिसाइड आए टॉप लेवल से, सीधा इम्प्लीमेंट कर दो, देखा जाएगा फिर जब चेंज करेंगे तब. तो लैक ऑफ प्लानिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न. लेस एक्सपीरियंसेस, जो लोग डिसीजंस लेते हैं वो एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, ठीक है, इतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, तो गलती हर किसी से होती है. लोकेशन फैक्टर्स भी काम करता है. किस जगह पर तुम्हारी शॉप है, किस जगह पर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, किस जगह पर तुम्हारा मशीनरी प्लांट है. और नॉट यूजिंग द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, lack of raw materials availability in the transportation facilities. So whenever we established an particular company or an industries, so inception is one of the major cause of industrial sick. गलत जगह मौजूद है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल ना हो, एक्सपीरियंस पर्सन अवेलेबल ना हो, रॉन्ग सिलेक्शन है, डिसीजन गलत लिया, लैक ऑफ प्लानिंग, राइट. प्लानिंग गलत भी हो सकता है और वो इंसान प्लानिंग बनाते हैं तो वो गलती हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग सक्सेसफुली जाएगा. हाँ, प्लान करने के बाद उसको अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया तो डेफिनेटली सक्सेस जाओगे. आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है वो भी देखना पड़ेगा. कंपनीज बिकम सिक आफ्टर ए वाइल. मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी लोग होते हैं तो कंपनीज बिकम अ सिक. रॉन्ग डिसीजंस फॉर वन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. जनरल मोटर्स, ठीक है. ओवर ऑटोमेशंस. एक प्लांट था मैन्युफैक्चरिंग कार करने के लिए, वो डिजास्टर साबित हुआ. कलर किसी एक जगह पर होता था, वेल्डिंग उसका एक जगह पर रहता था और मैन्युफैक्चरिंग कहीं और. कंपनी ट्राइड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम बट इट वाज नॉट इन फेवर. सो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कार बिकेम वेरी मच कॉस्टलियर. अब कॉस्टली चीज़ मार्केट में जाएगी तो खरीदने वाला कितने होंगे. एंड उसी गाड़ी का इनइफेक्टिव मार्केटिंग किया था, तो जो कुछ भी मार्केटिंग किया था वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा था. सो कंपनी बिकम सिक आफ्टर ए वाइल. इफ आई टॉक अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स, अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते.
रिसेशन आता है, हायर प्राइस ऑफ इनपुट्स रहती है, चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, सो कंपनी या इंडस्ट्री मे गेट सिक फ्रॉम द फॉलोइंग रीजंस. नाउ व्हाट टू डू टू सेव इंडस्ट्रीज फ्रॉम सिकनेस. कंपनी बंद होने जा रही है या बंद हो चुकी है तो उसको बचाने के लिए क्या करना है. तो सबसे पहला है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑर्डिनेशंस करो, कोऑपरेशंस करो. गवर्नमेंट एजेंसी का रोल क्या है, जिस हिसाब से उनकी रोल है वो उस हिसाब से पॉलिसीज बनाओ. वैल्यूएशन एंड मार्केटिंग किया करो कंपनी का रेगुलर बेसिस के ऊपर. इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड लेबर रिलेशंस. मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको रिप्लेस करो पुरानी के साथ, और जो वर्कर्स है, लेबर्स है, उनको ज़्यादा पता होता है रेदर देन द टॉप लेवल ऑफ पीपल और ए मैनेजमेंट. सो लेबर्स के साथ सही तरह से रिलेशंस रखे, बनाए रखे, और ताकि इंफॉर्मेशन मिलती रहे. मेकिंग एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड द इंसेंटिव्स. वर्कर्स को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स दिया करें. एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स द इंडस्ट्रीज कैसा है, राइट. अब गवर्नमेंट एटीट्यूड्स की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि पिछले सेशंस का थोड़ा सा यहाँ रिपीट करना चाहिए, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द 5-year प्लान वी हैड डिस्कस्ड दैट पहले के कुछ साल तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को ही फोकस किया था, फिर वी फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड देन वी वेंट to the 60s, 70s and 90s में we more focused on the 1991. So how does government react or have what kind of attitude they have? If I talk about some recent reforms, तो 2016 demonetization, 2017 of goods and services tax implemented, 2015 में जनधन आधार योजना भी आया था. तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है. whenever company is going to सिक, उसको बचाने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स लगाए जाते हैं. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. कोऑपरेशंस अमंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, वैल्यूएशन एंड मार्केटिंग, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, लेबर रिलेशंस, मेक एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड इंसेंटिव्स, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट आर सच पॉइंट्स दैट विच कैन सेव द इंडस्ट्रीज फ्रॉम द सिकनेस. सो after discussing about the industrial sickness, let us talk about the trade unions. What is trade union? Trade union can be defined as a continued associations of the worker, a particular group, resolution of conserving and improving their circumstances of employment. ठीक है. ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 लीगल डेफिनेशंस के बारे में मैं अगर बात करूँ तो इट मीन्स एनी कॉम्बिनेशन मच मे बी टेम्पररी और ए परमानेंट formed primarily for the purpose of the regulating the relationship between the workers and the employers, or between the workman and the workman, or between the employers with the employers, or for imposing restriction action on the conduct of any kind of trade or business activity, and includes any federation of 2 or more trade union. दो वर्कर के बीच में रिलेशंस कैसे है, वर्कमैन के बीच में कैसा है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स में कैसा है, रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप. एंड ट्रेड यूनियन generally refers as an organizations whose main goal is to protect the rights of the worker and make sure about their welfare. यही एक main point है. And their aim is not merely to fight against the wage cut but also to fight for the higher wages. Right? सिर्फ पैसे डिडक्ट होते और वर्कर्स लोग उसका वापस करेंगे ऐसा नहीं है, बट सैलरी इंक्रीमेंट के लिए भी एक यूनियन बनाया जाता है. एंड द टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशंस में और स्ट्राइक कमिटी कैन नॉट बी कंसिडर द ट्रेड यूनियंस, इट मस्ट बी द कंटिन्यूस एसोसिएशंस. कॉन्स्टेंट एक ग्रुप है जो वर्कर्स के फेवर में हमेशा से काम करता है. सो नाउ हाउ डज इट फंक्शंस. ठीक है, वो वेजेस के बारे में पहले बात करते हैं. ट्रेड यूनियंस एंड द डिमांड फॉर द सेफ्टी, वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में. ऑन जॉब यदि अगर वर्कर्स को कुछ हो गया तो उसका सेफ्टी किस हिसाब से रहेगी, एंड दे आर डीलिंग विद द कंपनी और ए इंडस्ट्री. ट्रेड यूनियन मस्ट प्रमोट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड प्रमोट इट इन द वर्क प्लेस और वर्केबल. Trade unions are like parents for the workers.
They teach them, they educate them, they train them, and above all, they teach how to work in discipline. This is also the most important aspect to solve the pertaining any problems, and this also get higher standard of quality. Now, ट्रेड यूनियंस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है और क्या है? It have power to affect the working, management, decisions of working place as well as society, teach laborers to live in the society, also because they teach to behave in working place, so the same will be done in the society. जो सोसाइटी में करते हैं, जो घर पे करते हैं, वही आपको जॉब प्लेस पे करना है, वर्क प्लेस पे करना है. So trade union must fulfill these aspects under the three category. Number one is promotion of national integration and national values and culture. Second number is to help the frame socio-economic policy and be a part of nation building. And the third one is to have a sense of responsibility and towards the industry and to the community. So these are the social responsibilities. Now what are the limitations and problems of trade union? कभी क्या होता है कि कंट्री में जितनी इंडस्ट्रीज और उसमें जो वर्कर्स होता है वो एक तो ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज में जाते हैं, यूनियंस के बारे में इतना पता नहीं होता है, स्मॉल ग्रुप होता है, छोटा सा ग्रुप, ठीक है, एंड दे आर लेस एजुकेटेड पीपल समटाइम्स, वर्कर्स, लेबर्स, सो दे डोंट नो देयर रियलिटी. ठीक है, तो सबसे पहला लिमिटेशंस एंड प्रॉब्लम्स क्या है, तो कि भाई लिमिटेड से इंडिया इज ए मोस्टली ड्रिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर एज मोर लेबर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड, सो ट्रेड यूनियंस आर वेरी लेस. जहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर यूनियन इतने देखने को नहीं मिलेगा आपको, और यदि अगर यूनियन होता है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, डेफिनेटली ब्रेक करेगा. स्मॉल साइज एंड द मोर नंबर्स. The number of trade unions are increasing and already exist, are breaking into other small unions. Internal problems in the trade unions like weak bargaining power, maintaining good relations become harder. Political interference भी आता है अंदर. Political influence is not a good thing for the smooth working of any trade union. But political party sees their own narrow political interest and many times they does not see the national interest. सो पॉलिटिकल इनफिल्ट्रेशंस भी रहता है. लेस फंड, एक ग्रुप तो बना दिया लेकिन अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर कमी रहती है. फुल टाइम वर्किंग ऑफ एनी ट्रेड यूनियन, सो हु विल बी रिप्रेजेंट द ट्रेड यूनियन परमानेंटली. क्वेश्चन ऑलवेज अराइज, छोटा सा ग्रुप है, 15-20 लोग, उसमें से रिप्रेजेंट कौन करेगा? लो इनकम वर्कर्स कैनॉट बी द पार्ट ऑफ रेगुलर सब्सक्रिप्शन ऑफ द ट्रेड यूनियंस. कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर और रेगुलर वर्कर ये भी रहता है. रेगुलर वर्कर को ज़्यादा पैसा मिलता है, कॉन्ट्रेक्चुअल को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिलता है, राइट. लेबर वर्कर इफ़ दे आर अपॉइंटेड ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस तो उसको कुछ फिक्स अमाउंट मिलेगी. रेगुलर है तो फिक्स अमाउंट से दुगनी अमाउंट मिल सकती है. इट डिपेंड. सो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं कि जो लो इनकम वर्कर्स है या जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस पॉलिसीज और दिस फैसिलिटीज़. सो ये भी एक रीज़न है उसके प्रॉब्लम्स ट्रेड यूनियन के रहते हैं. लेस एजुकेशन एंड इंटीग्रिटी. लैक ऑफ एजुकेशन इन द वर्कर्स इज द हाइंडरिंग फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस. दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द लेबर्स एज वेल, एंड टू अंडरस्टैंड टेक्निकल मैनेजरल इश्यूज इन द वर्किंग एरियाज आर ऑल्सो मेकिंग लेबर लेस इंक्लाइंड टूवर्ड्स द चेंज. कंपनी ने सोचा है कि भाई मशीनरीज लेकर आनी है, इफ द वर्कर इज़ नॉट स्किल्ड टू रन दैट मशीन्स, सो हो सकता है कंपनी उसको हटा दे नौकरी से. सो ट्रेड यूनियन का एक बेनिफिट ये भी रहेगा कि कंपनी के खिलाफ अगर कंपनी के कुछ आर्ग्यूमेंट करनी हो कंपनी में वर्कर्स के लिए, तो दिस इज़ व्हाट द ट्रेड यूनियंस आर. सो लैक ऑफ एजुकेशन, उसमें ट्रेड यूनियन भी उतना कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा. इंटीग्रिटी की मैं बात करूँ तो इट कम्स फ्रॉम द टॉप लेवल. Leader uses the fund management union properties for their personal use, which creates the dissatisfaction among the lower level of numbers, and this creates disintegrity among the members. So many time it happens कि top level management बहुत से लोगों को यूज़ भी करते हैं इस मामले में
Okay, so less education and the integrity is one of the problem for the trade union. So finally, I am thankful to you. We had covered about the topic related to the industrial sickness. We had talked about the trade union, causes of industrial sickness, and what to do for saving the industries from the industrial sickness, and followed by the trade union. So once again, I am highly thankful to you. See you in the next sessions. Thank you very much. स्वाध्यायः